یہ کہنے کو تو بھی ایک مسلمان ملک ہے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہاں 2007 سے حجاب پر پابندی عائد ہے۔ اتنا ہی نہیں، 2016 میں تقریباً 13,000 مردوں کی داڑھیاں زبردستی کاٹ دی گئی تھیں اور 160 حجاب بیچنے والی دکانیں بند کر دی گئی تھیں، کیونکہ اس ملک کی ثقافت ایسی روایات کو غیر ملکی سمجھتی ہے۔ اس ملک کی خواتین 160 حجاب بیچنے والی دکانیں بند کر دی گئی تھیں، کیونکہ اس ملک کی ثقافت ایسی روایات کو غیر ملکی سمجھتی ہے۔ اس ملک کی خواتین چکن نام کی کڑھائی کرتی ہیں، اور یہ فن اتنی باریکی اور خوبصورتی سے کیا جاتا ہے کہ یہاں صدیوں سے جاری ہے۔ اسی وجہ سے یونیسکو نے 2020 میں اسے غیر محسوس ثقافتی ورثہ انٹینگیبل کلچرل ہیریٹیج میں شامل کیا تھا۔ اس ملک کے تقریباً 15 لاکھ مرد اپنے خاندان کو بہتر زندگی دینے کے لیے روس جا کر روزگار کماتے ہیں۔ یہاں دیہا کاروبار، پروسٹیٹیوشن بھی قانونی طور پر جائز ہے۔ چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا یہ ملک اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہ ہے تاجکستان۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس ملک کے بارے میں، یہاں کے لوگوں کی زندگی، یہاں کی روایات اور سب سے اہم اس کا تاریخ۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ہماری محنت کامیاب ہو جائے گی۔ تاجکستان ایشیا میں واقع ہے اور وسطی ایشیا کا حصہ ہے۔ یہ ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اس کی کوئی بھی سرحد سمندر سے نہیں ملتی۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یہ روس کے جنوب میں، چین کے مغرب میں اور شمالی افغانستان کے اوپر واقع ہے۔ یہ ملک اپنے بلند پامیر اور علائے پہاڑی سلسلوں کے لیے مشہور ہے، اور اسی وجہ سے اسے روف آف دی ورلڈ یعنی دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے اس ملک کی دارالحکومت دوشنبے۔ دوشنبے کا مطلب فارسی زبان میں دو شنبہ یعنی پیر کا دن ہے، کیونکہ یہاں پیر کے دن ہفتہ وار بازار لگا کرتا تھا۔ یہ شہر قدیم سلک روڈ کا حصہ بھی تھا، جہاں تاجک، فارسی اور دوسرے وسطی ایشیائی قبائل نے بستیاں قائم کی تھیں۔ دوشنبے کی تاریخ 19ویں صدی میں یہ حصار ہیسور علاقے کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جو مقامی تجارت اور کھیتی باڑی پر ٹکا ہوا تھا۔ 1920 میں سوویت یونین نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور 1924 میں اسے تاجک ASSR کی دارالحکومت بنا دیا۔ اس دور میں شہر کی ترقی بہت تیز ہوئی۔ سوویت حکومت نے یہاں اسکول، اسپتال اور کارخانے تعمیر کرائے۔ 1929 میں شہر کا نام بدل کر اسٹالن آباد رکھا گیا، جو جوزف اسٹالن کے اعزاز میں تھا۔ 1961 تک یہی نام رہا، پھر دوبارہ اسے دوشنبے کہا جانے لگا۔ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد تاجکستان آزاد ہوا اور دوشنبے اس کی مستقل دارالحکومت بن گئی۔ گھریلو جنگ 1972 سے 1947۔ اس جنگ نے شہر کو شدید نقصان پہنچایا۔ 20,000 لوگ مارے گئے، 60,000 افراد اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے، لیکن اس کے بعد شہر نے تیزی سے ترقی کی۔ آج دوشنبے میں جدید تعمیرات جیسے نیشنل میوزیم نوروز پیلس پرانے سوویت طرز تعمیر کے ساتھ مل کر ایک منفرد منظر پیش کرتے ہیں۔ شہر کا رودکی پارک اور بوٹینیکل گارڈن سیاحوں کے لیے خوبصورت مقامات ہیں۔ مشہور مہرجان بازار تاجک ثقافت اور کھانوں کی بہترین جھلک دکھاتا ہے۔ تاجکستان کا جغرافیہ اور آبادی تاجکستان کا زمینی رقبہ 1,43,100 مربع کلومیٹر ہے، جس کے لحاظ سے دنیا میں 95ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہ مکمل طور پر لینڈ لاک ملک ہے اور اس کے 93% علاقے پر پہاڑ ہیں، جن میں پامیر اور علائے پہاڑ شامل ہیں۔ 2025 میں تاجکستان کی آبادی 1 کروڑ ہے، 8,10.8 ملین ہے اور یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آبادی کی نسلی تقسیم 85% تاجک، 10% ازبک، باقی روسی اور دیگر گروہ مذاہب، 94% مسلمان، زیادہ تر سنی کچھ شیعہ، 4% روسی آرتھوڈوکس، یہودی اور دیگر مذاہب اگرچہ اکثریت مسلم ہے۔ ملک کا آئین اسے سیکولر، غیر مذہبی ریاست قرار دیتا ہے۔ زبان تاجکی فارسی کی ایک شکل سیریلک رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔
सरकारी जबान रूसी, तिजारत और तालीम में बहुत इस्तेमाल उज़्बेकी और किर्गिज़ी कुछ इलाकों में बोली जाती हैं। ताजिकिस्तान की सकाफत और रवायात इस मुल्क की सकाफत, कुदरती खूबसूरती और मेहमान नवाजी उसे मुनफरद बनाते हैं। उसके पहाड़, नौरूज का त्यौहार और चिकन कढ़ाई दुनिया भर में मशहूर दो हैं। अगरचा ये मुस्लिम अकारिती मुल्क है, फिर भी हिजाब, दाढ़ी और कम उम्री की शादी जैसी रवायत पर सख्त पाबंदियां और कंट्रोल मौजूद हैं। हिजाब और मजहबी कवानीन ताजिकिस्तान ने 2024 में कानून नंबर 2048 मंजूर किया, जिसमें हिजाब को गैर मुल्की लिबास करार देकर पाबंदी लगा दी गई। हुकूमत का कहना है कि ये कौमी सकाफत की हिफाजत और मजहबी अंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए जरूरी कदम है। 2007 से ही हिजाब पर बाकायदा पाबंदी लगी हुई है, खास तौर पर स्कूलों और सरकारी दफातर में। 2016 में खतलोन इलाके में 160 हिजाब की दुकानें बंद कर दी गई थीं। अगस्त 2024 में उलमा कौंसिल ने तंग और सियाह कपड़ों पर भी पाबंदी लगा दी। अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करे तो उसे 7,920 ताजिक सुमोनी यानी तकरीबन 60,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। ताजिकिस्तान में दाढ़ी पर कोई सरकारी कानून तो मौजूद नहीं, लेकिन हुकूमत उसे अंतहा पसंदी की अलामत समझती है। उसी वजह से 2016 में खुतलान में 13,000 मर्दों की दाढ़ियां जबरदस्ती कटवाई गई थीं। एक ताजिक शहरी को 2025 में बर्तानिया में पनाह मिली, क्योंकि उसे खौफ था कि दाढ़ी की वजह से उसे ताजिकिस्तान में गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस सड़कों पर छापे मारती है और मुर्दों को थाने ले जाकर उनकी दाढ़ी मंडवा देती है, जिसे बहुत से लोग तौहीन आमेज समझते हैं। आपकी नजर में यह सही है या गलत? कमेंट में जरूर बताएं। उन सब के पीछे जो बड़ा सबब समझा जाता है वो ये है कि यहाँ की हुकूमत सेकुलरिज्म को फरोग देती है, जो सोवियत दौर की विरासत है। 70 साल तक सोवियत हुकूमत ने यहाँ लादीनियत को बढ़ाया, जिससे मजहबी रवायात कमजोर पड़ गईं। सदर उमूम अली रहमान, जो 1994 से इक़्तिदार में हैं, मुल्क की शिनाख्त को फारसी और ताजिक सकाफत से जोड़ना चाहते हैं, न कि इस्लामी रवायात से। वो दाढ़ी और हिजाब को बीरूनी असरात समझते हैं, जो ताजिक सकाफत से मेल नहीं खाते। शादी और रवायात उस मुल्क में अक्सर खवातीन की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है, और शादी के बाद यहां लोग अपनी सहागरात के रस्म और रवाज को पूरे 40 दिन तक मनाते हैं। उन 40 दिनों में पहले 3 दिन दुल्हन अपने ससुराल में रहती है ताकि घर और लोगों को बेहतर समझ सके। उसके बाद दोनों खानदानों के दरमियान आना जाना जारी रहता है। यह रवायत पूरे 40 दिन चलती है। यह है इस्कंदर कुल झील। ये खूबसूरत झील फान पहाड़ों में 2195 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। उसका नाम सिकंदर आजम के नाम पर रखा गया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो यहां तक आए थे। झील का पानी नीला, सब्ज और इतना शफाफ है कि नीचे तक दिखाई देता है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और घने जंगल उसे जंत जैसा बना देते हैं। जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं तो ये सोने की तरह चमकती है। यहां के जंगलात में बर्फानी चीते और मार्को पोलो भीड़ जैसे नायाब जानवर भी मिल जाते हैं। यह जगह कुदरत के दिलदादा अफराद और ट्रेकिंग करने वालों के लिए बहुत खास है। नोरोज पैलेस, यह है नोरोज पैलेस। इसकी तामीर 2009 में शुरू हुई और सितंबर 2014 में मुकम्मल हुई। उसे ताजिकिस्तान के सदर उमूम अली रहमान के हुक्म पर बनाया गया था, जो इब्तिदा में उसे दुनिया की सबसे बड़ी चाय खाना बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में यह एक शानदार सकाफती महल में तब्दील हो गया। यह महल इस्माइल सुमानी एवेन्यू पर कोमस्सो माल झील के किनारे बना हुआ है और अतराफ में रंग बिरंगे फव्वारे और सरसब्ज बागात हैं। नोरोज पैलेस की असल खूबसूरती उसकी शानदार तामीरात में है। यह 4000 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। उसकी 5 मंजिलें हैं और 4000 ताजिक कारीगरों ने उसे तैयार किया। उन्होंने लकड़ी की नफीस नक्श व नुगार, रंगीन मोज़िक और फ्लोरेंटाइन तर्ज की दीवारों पर फन पारे बनाए। उसका सबसे बड़ा गुंबद 40 मीटर ऊंचा है, जो पूरे वस्ती एशिया में सबसे बड़ा है। गालिस्तान, दिदौर, जरंदूद और अर्दिंग जैसे हालों में 94 अक़साम की लकड़ियां इस्तेमाल की गईं, जैसे मेपल और महोगनी।
दीवारों पर ताजिक लोक कहानियों के मनाजर और पामीर पहाड़ों के नीम कीमती पत्थरों से बने मौज़ीक उसे और भी दिलकश बनाते हैं। बाहर के बागात इस महल को सुकून और कुदरत की हुसैन छांव देते हैं। नूरोज महल न सिर्फ खूबसूरती की अलामत है बल्कि ताजिक सकाफत और कौमी फख्र की निशानी भी है। ये एक जिंदा अजायब घर है जहां ताजिक कारीगरों की हुनरमंदी को पेश किया गया है। पामीर हाईवे M41। ये है पामीर हाईवे, जिसे M41 भी कहा जाता है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद सड़क है। ये ताजिकिस्तान के दोशंबे से किर्गिस्तान के उविश शहर तक 1250 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये कदीम सुलग रोड का हिस्सा है जो पामीर पहाड़ों के दरमियान से गुजरती है। इसका सबसे ऊंचा मकाम एक बैतल है जो 4655 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। यहाँ के नज़ारे नाकाबिल यकीन हैं। बर्फ पोश पहाड़, नीली झीलें और गहरी वादियां। वाखान कॉरिडोर में तो आप दरिया के उस पार अफगानिस्तान को भी देख सकते हैं। यह सड़क महमजो और एडवेंचर पसंद सियाहों के लिए बेहतरीन है। अगर आपको ताजिकिस्तान के बारे में यह मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।